सो दैट आपसे इम्पोर्टेंट चीज मिस नहीं होगी. वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन सो दैट फॉर future reference purpose we can share with you if you are with me till the end of this session. So let me give you my brief who I am. I am Hem Singh Patle and I am author of this book, the 5 minutes magical habit. This book is available in English and Hindi and Marathi may be available. I am also author of this workbook. You can say this ultimate life planner, right? यदि आपने ये वर्कबुक और बुक रीड नहीं किया है, so एक बार आप रीड कर सकते हैं. And I am on a mission to transform 1 billion life. So before 2019, I was into a corporate job. 16 years I worked in a different automobile company like Mahindra and Mahindra, Hero MotoCorp, two-wheeler manufacturing company, and I was into the R&D. Then I decided to pursue my passion. I quit my job, and from 2019, I am full-time into corporate training, coaching, motivational speaking, and habit is my niche area. So this is my book. Okay. So how many of you are really excited for this session? Type yes in chat box quickly. How many of you are really excited for this session to know how you can start your part-time business? Type yes in chat box quickly, everyone. Praful says yes. Shailesh says yes. Amirul says yes. Corey says yes. Sudhar Saab says yes. Okay. Selva says yes. Okay. Wonderful. Great. So part-time business means what? Part-time business means what? So what Zig Ziglar says, Zig Ziglar जो है एक यूएस के बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हुए, बिजनेस कोच हुए. ही सेड कि यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस. आप बिजनेस नहीं बनाते हैं, आप लोगों को बनाते हैं और लोग फिर आपके बिजनेस को बनाते हैं. ठीक है. सो 24 लिखा है बट वी आर गोइंग टू शेयर सम 22 मनी मेकिंग आइडियाज. इट कैन बी 23 ऑल्सो. सो व्हाई इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू जॉब? टाइप जे यदि आप जॉब में हैं, और यदि आप बिजनेस में हैं तो टाइप बी. इफ यू आर इनटू जॉब टाइप जे, and if you are into business type B. If you are in a job type J, and if you are in a business type B. Sanjay is business, Praful is in job. Okay. Shailesh is into business. Yes, everyone. And this will help me to understand whether you are into Selvaraj, you are into job. You can type J. Okay. Yes, Devi is in job. Selvaraj is in job. Okay, wonderful. So money making ideas. So first money making idea is language translation, right? First money making idea is language translation. So language translation you can do in English to Hindi and Hindi to English, right? You can translate book into Hindi to English and English to Hindi. So that is one of the job which you can do. And why this is a part time? So part time means where you have to invest 2 to 3 hours every single day. तो पार्ट टाइम बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट टाइम बिजनेस ऐसा नहीं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया एज ए पार्ट टाइम एंड आई एम नॉट गिविंग एनी टाइम. मैं कुछ टाइम नहीं दे रहा हूँ, राइट? मैं कुछ टाइम नहीं दे रहा हूँ. सो पार्ट टाइम बिजनेस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर इन अ फुल टाइम जॉब, यदि आप एक फुल टाइम जॉब में हैं, सो थिंक अबाउट कि क्या आप डेली 2 से 3 घंटे उस काम के लिए निकाल सकते हैं. 2 to 3 hours. आपका मन तो करेगा कि नहीं नहीं सर मेरे को पार्ट टाइम कुछ तो चालू करना है, बट आप सुबह घर से 6-7 बजे निकलते हैं, रात में 8-9 बजे तक आते हैं एंड यू डोंट हैव 2 to 3 hours. तो फिर आप पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पार्ट टाइम मतलब 2 to 3 hours तो देना ही पड़ेगा. यदि आप 2 to 3 hours नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आपका पार्ट टाइम बिजनेस नहीं होगा. सो नंबर 1 पार्ट टाइम बिजनेस जो आज के टाइम पे बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग है, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन. यू कैन ट्रांसलेट इंग्लिश इंटू हिंदी, हिंदी इंटू इंग्लिश, और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे मेरी बुक अभी हिंदी इंग्लिश मराठी में है, सो वी आर वर्किंग ऑन उड़िया वर्जन ऑल्सो. तो वहां पे वी आर connected with one regional language translator, right? Translation ka work you can get it from Upwork. You can see the chat. Upwork is a platform. Through this platform you can get job from overseas countries. So like some website building ka kaam, or any consulting work, any project management work. So you can visit Upwork, you can upload all your profile, all the data,
राइट, एंड थ्रू अपवर्क यू कैन गेट न्यू ऑर्डर्स, आपको नया काम मिलेगा। बट फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा अपवर्क से काम लेना। क्यों? जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है आपकी पूरी प्रोफाइल देखेगा। जो फॉर एग्जांपल कि अमीरुल है, अमीरुल सऊदी अरेबिया में है, एंड अमीरुल ने अपनी एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की कि मुझे ऐसा ऐसा ट्रेनर चाहिए या ऐसे ऐसे वेबसाइट बिल्डिंग के लिए कोई चाहिए, राइट। आपकी प्रोफाइल अपवर्क में है, फॉर एग्जांपल संजय की प्रोफाइल अपवर्क में है। तो संजय ने देखा कि अमीरुल जो कि सऊदी में, इनको ऐसा ऐसा काम चाहिए, और संजय ने उनको अप्रोच किया। तो अमीरुल पहले देखेगा कि संजय ने पहले ये काम किया है या नहीं किया, वहां पे रेटिंग क्या है संजय के काम की, उसके बेसिस पे अमीरुल उनसे कनेक्ट करेगा। सॉरी। उसमें होगा क्या, मान लो इनकी मीटिंग हुई, जूम के ऊपर मीटिंग हुई, और उसके बाद में इनकी मीटिंग डन हो गई और अमीरुल ने अपना वर्क संजय को दे दिया। सो फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन होगा वो अपवर्क के थ्रू होगा। तो अपवर्क अपने प्लेटफॉर्म का चार्ज लेगा, मे बी 10% या 20%, राइट। आर यू गेटिंग मी एवरीवन? अमीरुल ने अपना काम किसको असाइन किया, संजय को असाइन किया। संजय इज रेडी टू कंप्लीट दिस वर्क, संजय ने सारी डिटेल इनको दे दी। बट फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन होगी वो अपवर्क के थ्रू होगी, बिकॉज बोथ आर न्यू, दोनों नए हैं, दोनों अलग अलग कंट्री में हैं। संजय इंडिया में है और अमीरुल दुबई में है या सऊदी अरेबिया में है। बट एक बार इनका ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम पे ये डायरेक्टली डील कर सकते हैं, फिर उस समय आपको अपवर्क को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो ये तो एक अपवर्क साइट हुई। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, एंड देर आर सो मेनी पीपल दे आर मेकिंग मनी विद दिस काइंड ऑफ जॉब। मे बी वेबसाइट बिल्डिंग हो सकता है, कुछ डिजिटल का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आप कभी अपवर्क में अपना प्रोफाइल बना के विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग जो जॉब में होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं, वो अपवर्क के थ्रू बहुत सारा काम उठाते हैं, इवन दे आर मेकिंग इन लैक्स, लाखों में वो पैसा बना रहे हैं, राइट। तो अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप नोट कर सकते हैं, जहां से आपको ये जानकारी और भी डिटेल में मिल जाएगी। बट अगेन आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपका काम कितना अच्छा है वो देखा जाएगा, आपकी रेटिंग कितनी अच्छी है वो देखी जाएगी। बट यू विल गेट, इवन आपको कोचिंग के भी जॉब वहां पे मिल जाएंगे, लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे। बहुत जितने फील्ड आप देखोगे आपको अपवर्क से मिल सकते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग भी मिल सकता है। तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे। हो सकता है आपको होम ट्यूटर मिल जाए, हो सकता है आपको कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें अगले व्यक्ति को आपको रोज सुबह उठाने का काम करना है। कैन यू इमेजिन? फॉरेन का आपको ऐसा भी कुछ काम मिल सकता है कि आप उसको रिमाइंड करो, सर आपने गोली खाई, दवा खाई, नहीं खाया, जस्ट रिमाइंडर के लिए। तो यू कैन बी हिज अकाउंटेबिलिटी कोच। फिटनेस वाले का भी कुछ काम हो सकता है। तो जब भी आपको टाइम मिले अपवर्क के ऊपर आप जाओ और आप वहां पे विजिट कर सकते हो। ओके, सो व्हेन यू आर विजिटिंग अपवर्क और आप कनाडा के क्लाइंट देखते हो, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट देखते हो, यूके के क्लाइंट देखते हो, तो हो सकता है आपको वहां पे इंडियंस हिंदी भाषी भी मिल जाए, जो कि पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल है, राइट। सो फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अगेन यहाँ पे आपका स्किल काम आएगा, यदि आपके पास स्किल नहीं है तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, सो टाइप यस इन चैट बॉक्स एवरीवन, यदि आपको पहला जो ऑप्शन है समझ में आ गया तो, ठीक है। टाइप यस एवरीवन, टाइप यस इन चैट बॉक्स यदि आपको ये समझ में आ गया तो। सो गणेश इन राम निवास इज ज्वाइन क्विकली। एंड यू कैन मेक नोट्स। अपवर्क का नाम आप भूल जाओगे, और आप अपवर्क में सच में प्रोफाइल बना के देखना। कई बार हो सकता है बाई लक आपको कोई एक अच्छा क्लाइंट मिल गया, एक या दो क्लाइंट अच्छे मिल गए, आपकी सर्विस से वो हैप्पी हो गए, तो उसके बाद आपको दोबारा अपवर्क लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े, वन टू वन मीटिंग करके ही आपके बिजनेस चल सकते हैं। सो मेरा एक क्लाइंट है, ही इज बेसिकली फ्रॉम केनिया, जो कि मुझे फेसबुक एड से मिला। अभी 2 साल हो गए मैं उनको मंथली सर्विस दे रहा हूँ, 2 इयर्स हो गए। सो आपको पता ही है, यदि हम इंडिया में किसी से 5,000 चार्ज करते हैं और दुबई में किसी से 10,000 चार्ज करेंगे तो डिफरेंस रहता है, राइट। तो जब भी आप फॉरेन के किसी भी क्लाइंट के साथ डील करें तो आप वहाँ की प्राइसिंग अलग रखोगे, ना कि इंडिया वाली प्राइसिंग। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप इंडिया में 10,000 चार्ज कर रहे हो तो आपको फॉरेन क्लाइंट के साथ में ज़्यादा ही चार्ज करना है, ठीक है, ताकि आपको करेंसी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं, नहीं नहीं सर हम तो इंडिया में 10 चार्ज कर रहे हैं, आपको भी 10 चार्ज करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, मनी मेकिंग आइडियाज पार्ट टाइम के लिए। यू ऑल नो वीडियो एडिटिंग। आज की डेट में वीडियो की बहुत डिमांड है, रील्स की बहुत डिमांड है, शॉर्ट्स की बहुत डिमांड है, हर कोई वीडियो बना रहा है।
बट वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप बताइए मुझे, डू यू वांट एनी सर्टिफिकेट? आपको किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स चाहिए? आपको वो भी नहीं चाहिए। किसी सर्टिफाइड कंपनी का किया हुआ कोर्स चाहिए? आपको वो भी नहीं चाहिए। राइट? तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राइट? तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जो है आपका इंटरेस्ट चाहिए, आपकी स्किल चाहिए, और आप कितनी अच्छी से अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। इवन अपवर्क के थ्रू भी आप वीडियो एडिटिंग का काम उठा सकते हैं। अपवर्क के थ्रू भी आपको वीडियो एडिटिंग का काम मिल सकता है, इतना पॉसिबल है। और सोचो, फॉरेन वाला यदि आपको कोई वीडियो एडिटिंग का काम देगा तो आप कितना चार्ज करोगे? इंडिया से ज्यादा चार्ज करोगे। आवरली बेसिस पे, मिनट के बेसिस पे चार्ज करोगे। तो जब भी वीडियो एडिटिंग का चार्ज लिया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, मिनट्स के बेसिस पे लिया जाता है कि ये 1 मिनट का वीडियो है तो इतना चार्ज होगा, 2 मिनट का इतना चार्ज होगा, 3 मिनट का इतना चार्ज होगा, 10 मिनट का है तो इतना चार्ज होगा। कभी ऐसा नहीं बोलते कि सर आप दे दो वीडियो, दे दो मैं तो एडिट करूंगा और 300 में मैं आपका काम कर दूंगा। पता चला आपको 30 मिनट का वीडियो दिया उन्होंने एडिट करने में, और आपने चार्ज कितना किया? 300 रुपये। और आपने आपको आप बाद में फिर सिर पकड़ लिए कि ये सर इसमें तो बहुत काम था, 300 का 500 कर दो। वो बोलेगा यार तुमने ही बोला था। राइट? तो कभी भी यदि कोई वीडियो एडिटिंग का काम लेता है तो हमेशा मिनट के हिसाब से आपको चार्ज करना होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट्स, मिनट के हिसाब से कभी भी आपको चार्ज करना होता है। ठीक है? तो सेकेंड पार्ट टाइम मनी मेकिंग आइडिया इज वीडियो एडिटिंग। सो एज आई सेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपको ये बोला, बहुत सारे आइडियाज ऐसे होंगे जो आपको लगेगा अरे सर ये तो मुझे पता है, आप क्यों बता रहे हो। बट एक बहुत ही काम की इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा, जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी, और वही आपको मनी मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है? तो दो आइडिया अभी हमने डिस्कस कर लिया, पहला लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एंड दूसरा वीडियो एडिटिंग का। ठीक है? नाउ थर्ड वन इज पेड इंटर्नशिप। आप में से कितने लोगों ने पेड इंटर्नशिप के बारे में सुना है? टाइप यस। आजकल आपने यदि देखा होगा तो मेट्रो सिटीज में आपको पेड इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे सुनने में आएंगे। ठीक है? टाउन बी और टाउन सी में आपको जो है सुनने में नहीं आएगा, बट जितनी मेट्रो सिटीज है वहां पे आपको इंटर्नशिप पेड मिल जाएगी। और एक वेबसाइट है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला तो जो ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाती है। इंटर्नशाला की वेबसाइट पे जाओ, उनके थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए। जो नई कंपनी है या स्टार्टअप है, सॉरी, आपको 5K से लेके 10K तक, 8K तक का इंटर्नशिप का पैसा आसानी से दे देते हैं। तो इंटर्नशिप आपको पेड मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। इंटर्नशाला की वेबसाइट के ऊपर जाना है, या और भी आपको ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो कि इंटर्नशिप दिलवाने में मदद करेंगे। तो बहुत सारे एचआर भी इंटर्न्स रिक्रूट करते हैं, क्योंकि पर्पस क्या रहता है, इंटर्नशिप आपको 6 महीने की होगी या 1 ईयर की होगी। तो ये एक और एरिया है जहां पर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। पर यदि आप ऑलरेडी जॉब में है तो फिर आप इसको कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप भी होती है, ऑफलाइन के अलावा कुछ ऑनलाइन इंटर्नशिप भी होती है। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर सर्च करना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन इंटर्नशिप कौन कौन सी है और कैसे आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। ठीक है? सो दिस इज द थर्ड आइडिया, थर्ड मनी मेकिंग आइडिया। एंड नाउ द फोर्थ मनी मेकिंग आइडिया इज वेरी वेरी कॉमन, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है? आपने बोला सर मैं जॉब में हूं बट मेरी इच्छा है कि मैं कुछ और करूं, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं। तो मैं ऑफिस दूसरा ओपन नहीं कर सकता, मैं अपनी कोई बिल्डिंग नहीं डाल सकता, मैं अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मैं तो सिर्फ सेलिंग कर सकता हूँ, है ना, मुझे बोलना आता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि किसी और का प्रोडक्ट है, आप उसको एफिलिएट कर रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल किसी का कोई ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम है और आपने उनको क्लाइंट लाके दिया, और आपका जो एफिलिएट है परसेंटेज वो फिक्स हो गया, दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो पहले एफिलेट मार्केटिंग बहुत चलती थी, अभी भी एफिलेट मार्केटिंग है, बट थोड़ा सा परसेंटेज कम हो सकता है। राइट? सो एफिलेट मार्केटिंग, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप खुद यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प कर रहे हैं और आप कमीशन ले रहे हैं, इसको बोलते हैं एफिलेट मार्केटिंग। आप में से कई लोगों ने अंकुर वरीकू का नाम सुना होगा, राइट? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो ही ऑल्सो डज द एफिलेट मार्केटिंग। बड़े बड़े जो
स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, दे ऑल्सो डू दी एफिलिएट मार्केटिंग, कि उनके दूसरों के प्रोडक्ट को जस्ट वो उसके बारे में बताते हैं और उसके थ्रू जो भी सेल होता है तो उनको परसेंटेज मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि देखिए आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपने अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर दिया, राइट। अब आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं अपने कस्टमर को सेल करने के लिए। तो वैसे केस में संजय आप क्या करोगे, आपका कस्टमर तो हो गया, एक बार आपने उसको आरओ दिया, खत्म। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि सर हर 3 महीने में आरओ बदलो आरओ बदलो। वो बदलेगा क्या आरओ? नहीं बदलेगा। तो आपने क्या किया, एक बार उसको औरो सेल किया, उसके बाद आपका काम खत्म। अब फिर आप नए कस्टमर ढूंढोगे, फिर नए कस्टमर ढूंढोगे, फिर नए कस्टमर ढूंढोगे। उसके बजाय आपने क्या किया, आपने एक कस्टमर को औरो दिया, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। अब आपने इनको एक क्रॉस सेलिंग कर दी। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्रॉस सेलिंग, किसी और का प्रोडक्ट आपने उनको सेल कर दिया। ठीक है। जब आपने किसी और का प्रोडक्ट उनको सेल कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि उससे आपका जो भी कमीशन है वो जनरेट होगा। और ये बात बहुत सारी बुक्स में, जो मिलीनियर बुक्स है उसमें भी ये बात कही गई है कि जो एक कस्टमर आपसे कनेक्ट हो चुका है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो चुके हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद यदि आप उनको, ओहो गणेश जी ये क्या कर रहे हो आप? दिस इज नॉट अलाउड मैन। ठीक है। सो आई वॉज नॉट अवेयर कि ये ऐसा कैसे परमिशन उनके पास चले जाता है। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि वो किसी और को परमिशन ना जाए। ठीक है। सो आपके पास एक कस्टमर है, आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब उसके बाद आप किसी और का प्रोडक्ट क्रॉस सेल कर सकते हैं, उनको जो है आप सेल कर सकते हैं, और ये लीगल भी है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। आप ये सोचो नहीं नहीं मैं उनको क्यों सेल करूं, इसका मतलब फिर आपकी अर्निंग के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो आप भी चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बट जिसके प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो उसके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, राइट। या उसको आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोलोगे तो एक तरीके से कमीशन जो है, आप उसको ये बोल सकते हो कि आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। पर ये आप क्यों करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझे 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके यदि थोड़ा भी इनकम मिलता है और जो कि मेरी लाइफस्टाइल को बेटर करने में हेल्प करता है तो ही करेंगे। यदि आप एकदम संत मुनि की तरह सेटिस्फाइड है, नहीं नहीं यार मुझे तो नहीं करना है, तो फिर आप एफर्ट्स नहीं लेंगे। ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपका चौथा आइडिया होगा जो कि आप पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आपको अपना कोई ऑफिस ओपन करने की जरूरत नहीं है ना। आपको कोई अपने नीचे बंदे टीम मेंबर रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग का नाम बहुत बार जरूर सुना होगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम बहुत बार जरूर सुना होगा। ठीक है। चलिए, नाउ फिफ्थ मनी मेकिंग आइडिया इज स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस। स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस, फिफ्थ मनी मेकिंग आइडिया इज स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मैत्री अमृतुल्य? रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों को मैत्री अमृतुल्य चाय के बारे में पता है? यस। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मैत्री अमृतुल्य? संजय जी को पता है क्योंकि इंदौर में है। और कौन? पुलक? मैत्री अमृतुल्य बबुली को पता है। हु एल्स? देवी को पता होगा, शाश्वत जी को नहीं पता। ठीक है। प्रफुल्ल को भी नहीं पता। ओके। सो मैत्री अमृतुल्य इज अ टी ब्रांड। ये एक टी ब्रांड है। जैसे आपने येवले चाय, यदि आप अपनी स्टेट से बाहर गए होंगे तो आपने देखा होगा, जनरली पुणे, मुंबई, एमपी, जयपुर, इधर ये बहुत फेमस है। तो इसकी यदि आप फ्रेंचाइजी लेके किसी टीम मेंबर को वहां पे बिठा सकते हैं, फ्रेंचाइजी मैत्री अमृतुल्य की तो 3 से 5 लाख में आती है, येवले वालों की 10 लाख के ऊपर आती है। तो आपका मन है कि नहीं सर मुझे तो अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है, मैं उसमें ना बैठूं, मैं अपने एक आदमी को बिठा दूं, 2 आदमी को बिठा दूं, तो आप ये चाय वाली फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो कि 3.5 लाख रुपए से आपको आसानी से मिल सकती है। उसमें वो अपना पूरा जो सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरी उनकी मैथडोलॉजी रहती है, वो आपको पूरा समझा के जाएंगे। और आजकल अपनी कंट्री में जो है कॉफी से ज्यादा चाय का ट्रेंड है, राइट। तो मैत्री अमृतुल्य एक
एक जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं आपको मैत्री अमृततुल्य लेने ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे चाय के ब्रांड है। दूसरी पार्ट टाइम में जो आप यदि कर सकते हैं वो है टी शर्ट मेकिंग का। आप में से कितने लोगों को टी शर्ट मेकिंग का आइडिया है कि आप 200 से 250 रुपीज में आपको जस्ट उनको व्हाट्सएप पे डिटेल देना है या मेल पे डिटेल देना है, वो टी शर्ट बना के आपको दे देगा। जैसे हमारी 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट की टी शर्ट्स है, 200 से 250 रुपीज में आपको टी शर्ट वो डिलीवर करके दे देगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने यूट्यूब चैनल में टी शर्ट, आपने देखा होगा कि उस इन्फ्लुएंसर्स की टी शर्ट है, वो सीधे टाई अप कर लेते हैं और वो उनको डिलीवर हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके का कुछ काम करना है, आपने 250 में बनाया और 500 में सेल किया, ये भी एक काम हो सकता है। या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास में किसी एक व्यक्ति को डिप्लॉय करके आपने स्टेशनरी लगाया। यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज वर्किंग विथ हीरो टू व्हीलर, तो वो वहां पे जॉब में है, ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ही इज फ्रॉम राजस्थान। उन्होंने 2 ऑफिस रेंट पे लिए हैं, 2 शॉप रेंट पे लिए हैं, और एक में क्लॉथिंग है और दूसरे में शूज है। एक में क्लॉथिंग है और दूसरे में शूज है। दोनों में एक एक व्यक्ति को रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, और वो मीजो के थ्रू जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, मीजो के थ्रू ऑनलाइन। और आपको पता है कि आजकल आप अपने मोबाइल से कैमरे के थ्रू पूरा ऑफिस देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप ले रहे हो। सो फुल टाइम जॉब में है बंदा, उसने 2 लोगों को हायर किया, 2 ऑफिस मतलब शॉप लिया रेंट पे, प्रोडक्ट सेल हो रहा है मीजो को। क्या क्या है, शूज है एक और दूसरा है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग उनको दिल्ली से मिल जाती है, शूज भी उनको दिल्ली से मिल जाता है। एंड प्रैक्टिकली ही इज डूइंग दैट बिजनेस, अभी भी वो इस बिजनेस को कर रहा है। पार्ट टाइम उनको बंदे को रख के ही वो उन्होंने अपना काम किया, एंड फुल टाइम वो अपने जॉब में ही है। राइट, तो अभी बंदे ने जॉब भी क्विट नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे मनी मेकिंग आइडियाज हैं जो कि प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं। उसके लिए देखो, आपको एक तो आपकी डिजायर चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना है। राइट, यदि आपकी डिजायर नहीं है तो डेफिनेटली आप ट्राई नहीं करोगे, आप बोलोगे अरे सर ये तो सक्सेसफुल होगा नहीं, फेलियर होगा। राइट, तो ये आपका जो था फिफ्थ मनी मेकिंग आइडियाज था। सो बिफोर नाउ सिक्स्थ वन इज वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सिक्स्थ वन इज वेब डेवलपमेंट। सो टाइप यस इन चैट बॉक्स क्विकली, यहां तक यदि आपको समझ में आ गया, या कोई एक आइडिया जो आपको याद है आउट ऑफ 5, 5 में से कोई एक आइडिया जो आपको याद है चैट बॉक्स में लिखिए, सो क्विकली एक रिवीजन हो जाएगा। आपको कौन सा आइडिया याद है आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 आपको कौन सा आइडिया याद है? एवरीवन प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। So Perumal, you have just joined. So will affiliate marketing? Yes, Sanjay is aware about affiliate marketing. Okay. Everyone, please write in chat box. तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, they will understand. Yogesh says franchisee model. Yes. Who else? Video editing. Great. Affiliate marketing. Language translation. Sales. Small business. Yes, language translation. ओके, सो लाइक यदि आप स्कूल टीचर है, फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो दैट यू कैन डू। बट आपको नेटवर्किंग तो चाहिए जहां से आपके पास काम आएगा, है ना? या आप सोशल मीडिया के थ्रू काम ले सकते हैं। सो सिक्स्थ वन इज वेब डेवलपमेंट। So if you have not visited my website, I am typing the website name magicalhabit.in. This is my website. Okay. So जिस बंदे ने मेरी वेबसाइट बनाई, he is into job, वो फुल टाइम जॉब में है, एंड पार्ट टाइम में ही इज अ वेब डेवलपर। यहाँ पे आज शायद ज्वाइन नहीं किया है। सो पार्ट टाइम ही इज अ वेब डेवलपर, वो वेबसाइट बनाते हैं पार्ट टाइम में। गूगल एसईओ, इफ यू हर्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पार्ट टाइम में वो एसईओ का भी काम कर रहा है। सो वन साइड ही इज कनेक्टेड विथ मी थ्रू माई प्रोग्राम, एक तरफ वो मेरे प्रोग्राम से कनेक्टेड है जिसके लिए उन्होंने मुझे पे किया, एंड सेकेंड मैंने उनको पे किया क्योंकि उन्होंने मेरी वेबसाइट डेवलप की, क्योंकि वो मेरे एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं। फुल टाइम बंदा जॉब करता है, पार्ट टाइम में वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सो आप भी कर सकते हैं यदि आपको ये स्किल आती है तो। यदि आपको ये नहीं आती तो डेफिनेटली आपको वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज द सिक्स्थ मनी मेकिंग आइडियाज। नाउ विल डिस्कस द सेवेंथ मनी मेकिंग आइडिया इज ऐप डेवलपमेंट, सिमिलर टू द वेब डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल
बहुत सारे लोग अपना खुद का ऐप डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे कोचेस भी अपना ऐप डेवलप कर रहे हैं, कंपनीज भी अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, राइट। तो जिसको ऐप डेवलपमेंट आता है वो ऐप डेवलपमेंट के थ्रू भी अर्निंग कर सकता है, और इसके लिए भी आपको फुल टाइम की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम में ऐप डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो एट्थ मनी मेकिंग आइडिया इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कंटेंट मार्केटिंग? टाइप यस इन चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पता है? यस, टाइप यस इन चैट बॉक्स यदि आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पता है। रामनिवास सेज नो, योगेश सेज नो। नेक्स्ट, आप में से किस जिसको नहीं पता टाइप नो। ओके, देवी सेज यस। ओके, नो। व्हाट अबाउट अदर्स? नो। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। जो आपने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज पढ़ा होगा ना, मोटिवेशनल मैसेज, राइट पुलक, जो मैं डेली लिखता हूं, सो दैट मोटिवेशनल मैसेज इज नथिंग बट इट्स अ कंटेंट। इट्स अ कंटेंट। आपने हाफ पेज लिख दिया म्यूचुअल फंड के बारे में, दैट इज कंटेंट। हाफ पेज लिख दिया आपने हैबिट के बारे में, दैट इज कंटेंट। हाफ पेज आपने किसी और टॉपिक पे लिख दिया, दैट इज कंटेंट। सो कंटेंट मार्केटिंग। सो हर कंपनी को कंटेंट मार्केटर्स की जरूरत है। एवरी कंपनी दे नीड कंटेंट मार्केटर। एवरी ट्रेनर्स, कोचेस, डॉक्टर्स, दे नीड कंटेंट मार्केटर्स। तो रीजन कंटेंट मार्केटर क्यों चाहिए? आज की डेट में जो भी बिजनेस है, यदि वो ऑफलाइन भी है तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस यदि ऑफलाइन है तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका बिजनेस है लॉजिस्टिक का, तो आप बोलोगे सर लॉजिस्टिक बिजनेस को सोशल मीडिया की क्या जरूरत है, इंटरनेट की क्या जरूरत है, गूगल की क्या जरूरत है, लिंक्डइन की क्या जरूरत है? सो थ्रू कंटेंट मार्केटिंग दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर प्रमोटिंग देयर सर्विसेज कि हम ये काम करते हैं। तो अब जो फाउंडर है, जो कंपनी का मालिक है, वो तो लिखेगा नहीं बैठ के। फॉर एग्जांपल बबुली इज हेयर, तो बबुली जो है ही इज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो बबुली यदि रोज सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, कितने तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, राइट, पेंशन के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा। सो दिस इज व्हाट, जो ये लिख रहे हैं, दिस इज कंटेंट। अब बबुली के पास इतना टाइम नहीं है या बबुली के पास स्किल नहीं है कि मैं कैसे लिखूं, देन बबुली क्या करेंगे? ही विल हायर समबडी, राइट। तो बबुली क्या करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करेंगे जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी है, और जिनको बबली ने थोड़ा सा इनपुट दिया और उन्होंने उसको ब्यूटीफाई करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। और जब बबली ने सोशल मीडिया पे डाला और किसी को पढ़ने के बाद अच्छा लगा कि यस, SWP बहुत अच्छा फीचर है। आप में से कितने लोगों को SWP पता है? टाइप वाई। शैलेश को पता है। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो आज आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी। संजय को पता है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्विकली, अरे नहीं पता तो बता दो, नहीं पता अभी बता देंगे। इफ यू डोंट नो इट्स ओके। पुलक को नहीं पता, रामनिवास को नहीं पता, अमीरुल को नहीं पता। ओके, सी फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी मिले उतनी बढ़िया। देखो, वी ऑल नो अबाउट SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड में जाता है। इसी का जो उल्टा दूसरा भाई है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपए है और आपने बोला यार मुझे तो काम नहीं करना है, मंथली मेरे पास 30-40 हजार रुपए आए। तो आपने क्या किया? 50 लाख रुपए को SWP कर दिया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और मंथली वो आपको जो भी अमाउंट बनता है 30-40 हजार वो आपको देते रहेगा। तो SIP का उल्टा SWP। सिंपल है। बट अगेन किस में पैसे डालना है, क्या डालना है, वो आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर फंड के बारे में बताएगा। तो SIP का उल्टा जो है दैट इज SWP। और ये एक तरीके से रिटायरमेंट या आपको रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए है। तो रेगुलर इनकम जनरली रिटायरमेंट के बाद चाहिए होती है। या आपको लगा आपको कोई जैकपॉट लग गया, सो फॉर एग्जाम्पल प्रफुल्ल को कोई जैकपॉट लग गया या शिव को कोई जैकपॉट लग गया, जिन्होंने 50 लाख बना दिया। अब इनने बोला यार 50 लाख को क्या करूं, मंथली आना चाहिए इनकम की तरह, SWP डाल दिया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। महीने का 40-50 हजार जो भी आ रहा है, एंड ही इज रिलैक्स। तो ये होता है आपका SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो हम बात कर रहे थे कंटेंट मार्केटिंग की।
कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं उसको कंटेंट कहते हैं। उसके लिखने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, यू नीड समवन हु इज हैविंग स्किल इन राइटिंग, तो दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। सी आज के टाइम पे जो ग्रेजुएट्स है ना, कॉलेज ग्रेजुएट्स, आपको बहुत सारे कंटेंट मार्केटर्स मिल जाएंगे। इवन जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले हैं, दे आर वेरी गुड इन कंटेंट मार्केटिंग। कितना टाइम देना होता है, 2 to 3 hours देना होता है, एंड दे मेक मनी, राइट। सो आप अपनी लैंग्वेज में कंटेंट बना सकते हैं, आप हिंदी में भी कंटेंट बना सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कंटेंट बना सकते हैं, और उसका भी आपको पैसा मिल सकता है। अगेन आपको इसके लिए स्किल चाहिए। नाउ कमिंग टू नाइन्थ आइडिया इज सेलिंग ई बुक्स, राइट। ई बुक्स, सेलिंग ई बुक्स। आपने कोई बुक लिखी और उसको आपने अमेजन के ऊपर अपलोड कर दिया और आपने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। आइडिया एक है। दूसरा आइडिया, आपने 5 बुक पढ़ी, आपने 5 बुक पढ़ी, 5 बुक की समरी आपने बना दी 50 पेजेस की, हर बुक की 10 पेजेस की समरी ली, 5 बुक की समरी 50 पेजेस की हुई, उसकी आपने एक ई बुक बना दिया और आपने उसको 99 या 199 रुपीज में अमेजन पे अपलोड कर दिया। अमेजन पे अपलोड करने के लिए आपको ISBN जो है वो नहीं चाहिए होता है। गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे अमेजन पे अपलोड करना है। आपने अपलोड कर दिया और आपकी बुक सेल होने लगी। यस, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये भी एक एरिया है जहां पर लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, ई बुक सेल करके। ठीक है, ई बुक सेल करके भी लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। तो देखो, अभी तक जो हमने 9 आइडियाज डिस्कस किए हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि किसी ना किसी फील्ड में आपको उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। आइडिया कॉमन तो हो सकता है, आइडिया आपको पता भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज नहीं है, तो उस सिंपल आइडिया के थ्रू आप पैसा भी नहीं कमा सकते, राइट। सो यू नीड एक्सपर्टीज, यू नीड स्किल, देन ओनली यू कैन मेक मनी। सो नाउ कमिंग टू 10th आइडिया ऑफ मनी मेकिंग इज टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। जोमैटो ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग जो अभी हम कर रहे हैं, टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, राइट। सो बिफोर कोविड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स ज्यादा होती थी, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड जो है वो ऑनलाइन होने लगी। आपने देखा होगा कि योगा क्लासेस भी ऑनलाइन होती है, राइट। अभी क्लाउड किचन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट क्लाउड किचन? इंटरेस्टिंग थिंग है। इफ यू डोंट नो टाइप नो, क्लाउड किचन, क्लाउड किचन। शैलेश इज अवेयर, देवी इज अवेयर, मैक्सिमम आई थिंक यू आर नॉट अवेयर। नो, क्लाउड किचन, यस यस, उमाकांत जी, स्मिता जी, गौतम, शरत, क्लाउड किचन। सो क्लाउड किचन मीन्स, सपोज ये इतना आपके घर में जगह है एक्स्ट्रा, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा किचन बना दिया और यहीं पे फूड बन रहा है और जोमेटो के थ्रू आपके घर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि जोमेटो पे आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो डाल दी, फोटो प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, मंचूरियन डाल दिया, मोमोज डाल दिया, ये डाल दिया, समोसे डाल दिया, कुछ और डाल दिया। तो वहां पे उन्होंने देखा कि यार इसके प्राइसिंग भी ठीक है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। एंड दे आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई कि आपने ये जो बनाया है ये घर में बनाया है या ऑफिस में बनाया है या कहाँ पे बनाया है या छत पे बनाया है। क्लाउड किचन, आपने घर में इतनी सी जगह में 2 लोगों को रख के काम करना चालू कर दिया, गर्मा गर्म आप ऑर्डर सर्व कर रहे हो उनको। जोमेटो का काम है क्लाइंट लेके आना और आपका काम है उनको देना। सो दिस इज क्लाउड किचन। अच्छा, क्लाउड किचन डालने के लिए भी मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। उनके 1.5-2 लाख रुपए के प्रोग्राम्स होते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर क्लाउड किचन। इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट ये आपको मेट्रोज और Tier 1 Tier 2 सिटीज में ही मिलेगा, रूरल में आपको जैसे नहीं मिलेगा। तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है। तो जैसे जोमेटो ने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया, बाईजूस ने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया, राइट। सो दिस इज 10th मनी मेकिंग आइडियाज, कि जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो भी आप उससे मनी मेकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस जो है, आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी पैसे बनाए जा सकते हैं, आप अपने फील्ड के बारे में कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ड्रॉप शिपिंग। यू कैन नोट डाउन ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। सो ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है कि फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल नहीं होता, आप उसको अपने वेयर हाउस में भी नहीं रखते। सो फॉर एग्जांपल, सेलेस ने कुछ प्रोडक्ट की डिमांड की और प्रोडक्ट, और शाश्वत पुलक ने क्या किया, सेलर से लिया और बायर को दे दिया, ड्रॉप शिपिंग कर दी।
तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं, तो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, उनके टीम मेंबर होते हैं कॉलिंग वॉलिंग करने के लिए, तो उनका काम है रिक्वायरमेंट पूरी करवाना, मटेरियल सेल करवाना। तो ड्रॉप शिपिंग का भी बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो ये भी आप किसी व्यक्ति को हायर करके जो है ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। नाउ 13th इज बायजूस एंड फिजिक्स वाला, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसे आपको कोई कोचिंग आती है, आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, यू आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप क्या कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपको ये आता है कि भाई बिना मेडिसिन के शुगर कैसे कंट्रोल करना है, तो आपने इस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर, और आपकी एक्सपर्टीज है, क्यों एक्सपर्टीज है, आपने 100 50 200 लोगों की शुगर ऐसे ही ठीक कर दी, सो यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यस और नो, यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप एक योगा टीचर हो और आप सिर्फ विमेन्स को ही योगा ट्रेनिंग देते हो, और उसमें भी 40 से 50 वालों को ही देते हो, बोले 40 के नीचे नहीं और 50 के ऊपर नहीं, राइट। सो यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आपने क्या किया, आपने इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके चले गए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के। आपने, देवी ने फाइनेंशियल कंसल्टिंग देना चालू कर दिया कि भाई जो जॉब में है उनको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। अच्छा, सिर्फ मैं जॉब वालों को ही दूंगा, अरे गहरे किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ जॉब वालों को ही बताऊंगा, राइट, कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी मिल सकती है, बिजनेस वालों को नहीं बताऊंगा। तो आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए बहुत ही निश एरिया के लिए, और आपने इस काम को ऑनलाइन कर दिया। इसके थ्रू भी आप पैसा अर्न कर सकते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के, चाहे वो कोचिंग हो सकती है, चाहे वो कोई और भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। सो ये आप कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी बैंगलोर की, कि एक आईटी इंजीनियर जो है किसी पैसेंजर को बाइक पे बिठा के ड्रॉप कर रहा था, ठीक है। और उसने उस पैसेंजर को बताया कि मैं फुल टाइम एक आईटी इंजीनियर हूँ, और पार्ट टाइम में जो है वो ये सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी सर्विसेज आपको मेट्रो सिटीज में मिल जाएगी, जहां पर लोग अपने फुल टाइम जॉब के साथ 2 आवर्स 3 आवर्स ये काम करते हैं। कई लोग इवन ओला उबर 2 to 3 आवर्स ही चलाते हैं, बोले यार मेरे को इससे ज्यादा नहीं चाहिए सर, मेरे को रोज की 3 राइड मिल जाती है, मेरा काम हो जाता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पिछले 2 4 सालों में बढ़ा है। फॉरेन में तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ से जो भी पढ़ने जाता है वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करता ही है, राइट। सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री ऑल्सो। जो जिनका मैं एग्जांपल बता रहा था कि जिन्होंने मेरी वेबसाइट बनाई, तो उनके पास एक्सप्रेसो गाड़ी है, ठीक है। फुल टाइम वो जॉब में है, एक्सप्रेसो गाड़ी है, 4 व्हीलर। एक ड्राइवर कनेक्ट किया है, और उस गाड़ी को भी वो किराए पे दे देता है बंदा, गाड़ी को भी किराए पे दे देता है, ठीक है। तो उनकी गाड़ी से भी पैसा आ रहा है। और यदि आपके पास कार है और आपकी कार को धूल लग रही है, तो आप भी इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। पर यदि आपको बहुत ज्यादा प्यार है अपनी कार से, नहीं नहीं यार हम तो भेजेंगे नहीं किसी को, तो वो उसका तो प्राइस वैसे ही डिप्रिशिएट होते जा रहा है, बट लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक मनी मेकिंग आइडिया है। इवन आई डोंट रिमेम्बर द कार सर्विस नेम, देवी शायद आपको याद होगा, जो बैंगलोर की कंपनी है जो कि कार रेंटल पे ही देती है। आप कार की फोटो वोटो लो, राइट। जूम का। हाँ, जूम कार, कार की फोटो वोटो लो और आप कार लेके जाओ। और वो ये भी बोलते हैं कि आप अपनी कार हमारे साथ अटैच भी करवा सकते हैं। तो देखिए ये सारे काम वही करेगा जो सोचेगा कि पैसे कैसे बन सकते हैं, है ना। जो सोचेगा कि पैसे बनाने हैं तो अपनी कार को भी काम पे लगा सकता है। तो 14th आइडिया इज डिलीवरी सर्विसेज। 15 इज ई कॉमर्स सेलर, अगेन ऑनलाइन सेलिंग का काम है, राइट। तो ऑनलाइन सेलिंग में आपको क्या करना है, रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि लोग मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं, अमेजन के ऊपर अपना अकाउंट बना देते हैं, और यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगाए, बहुत अच्छी फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, और फोटो अच्छी है, अमेजन पे आपने डाला, मार्केटिंग किया, आपको ऑर्डर आ गया, राइट। तो आपने 2 3 घंटे घर में काम करके फैमिली मेंबर को समझा दिया, तो आपका ई कॉमर्स का भी पार्ट टाइम का काम स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं, ज्वेलरी वाले आइटम्स में करते हैं, जो आर्टिफिशियल्स आइटम होते हैं उसमें करते हैं। तो मार्केट से लेके आएंगे, बल्क में लेके आएंगे, या जो मेन मार्केट है वहां से लेके आते हैं, तो वहां से उनको थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाता है, राइट। तो ये भी एक बिजनेस के तौर पे आप देख सकते हो, ई कॉमर्स सर्विस। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ ताकि जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो मिस ना हो जाए। अब आता है प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर। प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर,
आपने देखा होगा कि कई जो वो फूड एक्सपर्ट होते हैं ना, वो जाएंगे, उनके साथ कैमरामैन रहता है, फिर वो बताएंगे कि देखो पनीर है, उनको फ्री में खाने मिल जाता है वहां पे, राइट। फूड ब्लॉगर जिसको बोलते हैं, फूड रिव्यू जो करते हैं, उनको फ्री में खाने मिलता है। तो वो क्या करते हैं, 2-4 घंटे का टाइम निकाला, अपने साथ एक बंदा रहेगा, वो पूरी रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करेगा, और वो उसके चार्ज करते हैं और बोलते हैं देखो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो रिव्यू करने का पैसा लेते हैं। मैंने इवन एक गन्ने वाले के पास भी देखा था, चाट वाले के पास भी देखा था इंदौर में। वो बंदा आ गया और बोला सर मेरे यूट्यूब के ऊपर इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं। वो गन्ने वाले को बोला अच्छा फिर से बना, फिर से बना। उसने फिर से गन्ना बनाया और बड़ा जूम करके उसने रिकॉर्डिंग किया, और मेरे को बता रहा था सर मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है, मैं इंस्टाग्राम पे डेली रील डालता हूँ। तो लोग उसका भी पैसा लेते हैं रिव्यू का। बट अगेन वो आपके इंटरेस्ट का काम होना चाहिए, आपको उस काम में इंटरेस्ट भी आना चाहिए, राइट। तो ये भी एक है। अच्छा, आप में से कितने लोग इंदौर के हैं? संजय इज फ्रॉम इंदौर। हु एल्स? गौतम इज फ्रॉम इंदौर। ओके, 2 लोग इंदौर से और मैं। तो यहाँ पे एक जेल कैफे है इंदौर में, आप गूगल करना जेल कैफे। तो उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो जेल वाला है, कि जब अंदर आप बैठो खाने के लिए और वो लॉक कर देते हैं, और जेल वाले जैसे दरवाजे हैं, तो आपको जेल वाली फीलिंग आती है। वहां पे वो जज वाला कैबिन बना हुआ है, वहां पे जाके आप फोटो खिंचवा सकते हो। तो नाम ही जेल कैफे है। तो व्हाट जेल कैफे वाला क्या करता है कि जब भी आपने खाया और बिल पे किया, वो बोलता है कि आप रिव्यू करो, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। 200 रुपीज का आपने खाया, आपको उसने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो वो एक तरीके से देखो रिव्यू के पैसे दे रहा है। तो ये तो वो जेल कैफे वाले का हुआ। दूसरा, जब आप किसी के लिए रिव्यू करते हो, तो भी आप उनसे पैसे ले सकते हो, बट उसके लिए भी आपको एक अथॉरिटी जो है, ब्रांड बनना पड़ेगा, उसके बगैर में ये होने वाला नहीं है, ठीक है। तो तेजी से चलते हैं। 17th आइडिया इज MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। आई थिंक सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, राइट। लेफ्ट में बनाओ, राइट में बनाओ, और फिर चलते जाओ, ठीक है। नाउ 18th इज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप में से कितने लोगों को वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में पता है? कितने लोगों को वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में पता है? एनीवन? क्विकली क्विकली, आप में से किसी को पता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है? योगेश को नहीं पता, ओके। वॉइस ओवर आर्टिस्ट गौतम जी को पता है, शैलेश को पता है, ओके। हु एल्स? पुलक को नहीं पता, अमीरुल को नहीं पता, ओके। सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब किसी भी एड में, किसी भी प्रोडक्ट में जो आवाज बैकएंड पे चलती है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो वो आवाज क्या होता है कि जब वो रिकॉर्ड करते तब कुछ और होती है, और उसके बाद में फिर वो प्रोसेस होके और भी चेंज हो जाती है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो IDBI बैंक में है, बेंगलोर में, और उसका पैशन है वॉइस ओवर का। तो उन्होंने किसी के लिए रिकॉर्डिंग की, फिर उनको काम अच्छा लगा, फिर दूसरे ने उनको उनके बारे में बताया, फिर तीसरे ने बताया। सो नाउ दैट पर्सन इज डूइंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अच्छा पैसा मिलता है, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपये मिलता है एक प्रोजेक्ट का। और आवाज पसंद आ गई तो आप, मतलब पूरा साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा। तो ये किसके लिए है? जिसकी आवाज जबरदस्त है, या जिसको पैशन है कि नहीं यार मेरा तो ना, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट उनके लिए है। पैसा अच्छा है इसमें, वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी, यदि आपका पैशन है तो। और आपको पूरे दिन काम नहीं करना है, आपको वीकेंड में ही रिकॉर्डिंग करनी है, या जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है। बट जनरली उसमें होता क्या है कि जब रिक्वायरमेंट आती है वो 11th आवर्स में आती है, मतलब लास्ट मिनट में आती है। जब 2-3 दिन बचे हैं तब बोलते हैं कि आपको करना ही करना है, टाइम कम है, ऐसे नहीं आती। बट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अच्छा आपको ये सारी चीजें पता है तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को बता सकते हो कि हाँ बेटा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी कुछ काम ऐसा होता है, ठीक है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाले काम से भी 2 to 3 आवर्स आप इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं, राइट। सो 18th, 19th ऑनलाइन क्लासेस जो होती है, जैसे हमारा मॉर्निंग का प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्लासेस है, जुम्बा की क्लास है, योगा की क्लास है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम करके भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, राइट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो इसके लिए आपको जूम चाहिए होता है। जूम के बारे में फिर से बता देता हूँ, 30 मिनट का जूम हमेशा फ्री रहता है हर किसी के लिए। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो यदि आपको लगता है कि यार 30-30 मिनट में मैं काम चला सकता हूँ, तो आप जूम की फ्री में सर्विस लो बिंदास। 30 मिनट लो, फिर उसके बाद बोलो फिर से रीलॉग इन करो, 1 घंटा हो गया आपका, राइट। 30 मिनट फ्री,
फिर 30 मिनट आपने रीलॉग इन कर दिया, जैसे खत्म हुआ फिर रीलॉग इन कर दिया, तो आप जूम की फ्री सर्विस लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं पहले सब्सक्रिप्शन लूंगा जी फिर काम करूंगा, ऐसा नहीं है। तो आप फ्री जूम के ऊपर भी जो है ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 20वां आइडिया ऑडियो बुक के बारे में। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको पूरी बुक की समरी ऑडियो में मिल जाती है, ताकि आप चलते चलते सुन सकते हो, मूवी का पूरा रिव्यू आपको मिल जाता है, राइट। कुकू एफएम जो है ऑडियो बुक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ऑडियो बुक का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को बुक रीड करने में बहुत आलस्य आ रहा है ना, वो रीड करना नहीं चाहते। तो ऑडियो क्या है, वो घर के कचरा साफ करते करते भी ऑडियो बुक चल रही होती है। अच्छा, कार चलाते चलाते भी ऑडियो बुक चल रही होती है। ऑफिस जा रहे हैं, बस में बैठे बैठे ऑडियो बुक चल रही है। तो ऑडियो बुक का क्रेज जो है बढ़ते जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट जो है वो भी एक तरीके का ऑडियो ही है। पॉडकास्ट भी एक तरीके का ऑडियो ही है, राइट। तो ऑडियो बुक वाला भी एक सेगमेंट है जिसके थ्रू मनी मेकिंग की जा सकती है। 21st आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस। आप सभी को पता है कि जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स आपका फेसबुक एड रन करते हैं, आपका गूगल एड रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एड रन क्यों करना पड़ता है, जैसे आज आप में से काफी लोग मेरे साथ एड रन के थ्रू ही कनेक्ट हुए हैं, राइट। तो फिजिकली मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाता कि आप उड़ीसा के कौन से सिटी से हैं, बट बिकॉज ऑफ डिजिटल एड रन वी ऑल आर कनेक्टेड। तो आज की डेट में हर कंपनी को क्या है, डिजिटल जाना ही जाना है। तो उनको डिजिटल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। इवन डेंटिस्ट भी ये काम कर रहे हैं कि भाई वो एड चलवा रहे हैं, राइट। इवन वो जो हस्तरेखा वाले हैं ना, वो भी डिजिटल चल रहा है आजकल। हस्तरेखा भी डिजिटल चल रहा है। तो डिजिटल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका यदि आपको नॉलेज है कि गूगल एड रन कैसे किया जाता है, फेसबुक एड रन कैसे किया जाता है, तो आप भी डिजिटल सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये हमारा 21st आइडिया है। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं उससे पहले एक बार क्विकली, सो राइट इन चैट बॉक्स आपको कौन सा वाला आइडिया याद है, एवरीवन। फिर उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से काफी कुछ आपको पता था जो मैंने अभी शेयर किया, राइट। बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके अंदर से किसी ना किसी टैलेंट को बाहर निकालेगा। सो अभी तक जो हमने आइडिया डिस्कस किया, प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स, आपको कौन सा याद है। संजय ने लिखा कि वॉइस और आर्टिस्ट, एमएलएम। एवरीवन प्लीज क्विकली राइट इन चैट बॉक्स, ऑडियो बुक। यस एवरीवन प्लीज। क्लाउड किचन, उमाकांत जी ने एमएलएम बोला, ठीक है। वेब डेवलपर, एफिलिएट मार्केटिंग, वॉइस ओवर, ऑडियो बुक, ठीक है। क्लाउड किचन, डिजिटल वीडियो एडिटिंग। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि जो हमने अभी तक 21st आइडिया डिस्कस किए, इसमें से कोई एक आप स्टार्ट करना चाहोगे? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आप में से कोई है जो स्टार्ट करना चाहेगा? कोई भी बता सकता है। यस, एनीवन। अरे उसमें हेजिटेट मत करो, यदि आपको लग रहा है कि सर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ वाला, योगेश ने बोला डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और कोई है जो स्टार्ट करना, मतलब जस्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं यार ये वाला आइडिया मुझे स्टार्ट करना चाहिए। वॉइस ओवर, ग्रेट। मतलब इनके अंदर टैलेंट है वॉइस वाला, वीडियो एडिटिंग, एफिलेट। इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हो ये पूछने का पर्पस क्या है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है इसमें से। जैसे योगेश का डिजिटल में समझ में आया इंटरेस्ट, ठीक है। साहू जी ने क्या बोला, वॉइस ओवर, मतलब साहू जी का कहीं ना कहीं वॉइस पे कमांड है। सुतार साहब का स्मॉल बिजनेस, क्योंकि इन्होंने पहले बिजनेस किया है। अमीरुल का स्मॉल बिजनेस, ठीक है। सुतार साहब ने फिर ओके। और वीडियो एडिटिंग किसने बोला, वीडियो एडिटिंग सेल्वराज ने वीडियो एडिटिंग, ओके। सो नाउ प्लीज टेक पेन एंड पेपर, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको हेल्प करेगा आपका पैशन फाइंड आउट करने में। अभी तक के 21 आइडियाज में हमने क्या चीज देखी कि आइडियाज तो बड़े सिंपल हैं, ठीक है। आइडियाज सिंपल है, मार्केट में पता है, यूट्यूब के ऊपर है, सब जगह है। बट वो आपका पैशन है या नहीं। योगेश ने बोल दिया वीडियो एडिटिंग, बट वीडियो एडिटिंग योगेश का पैशन है या नहीं, राइट। तो
आपने लिख तो दिया, बट वो आपका पैशन है या नहीं, वो पैशन निकालना जरूरी है। अब जिस काम में मैं अभी बैठा हूं, ये मेरा पैशन है, ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने पैशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो टेक पेन एंड पेपर एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी ऑनेस्ट। ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, मेरे फायदे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक्टिविटी अभी आप करोगे, सेम एक्टिविटी आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल आप अपने बच्चों के साथ दोहरा सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी अभी पे बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपका इकिगाई मेथड। आप सभी ने इकिगाई बुक रीड की होगी। यदि रीड की होगी तो आई कैन गारंटी यू कि आपने ये सर्कल नहीं भरा होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। हर कोई इकिगाई बुक रीड करता है और ये सर्कल जो है भरता नहीं, बोलते यार या तो ऐसी फोटो है, पिक्चर है, इसको हटाओ यार, आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको एक सर्कल बनाना है। इसको मैं बोल रहा हूँ पहला सर्कल। देखिए यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकेंड सर्कल। आपको कर्सर दिखेगा, ये फर्स्ट सर्कल है और ये आपका सेकेंड सर्कल है। ठीक है, सो फर्स्ट सर्कल में आपको क्या करना है, आपको लिखना है व्हाट यू लव। सॉरी, फर्स्ट सर्कल में आपको क्या लिखना है, व्हाट यू लव। ठीक है, फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करो आप, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ व्हाट यू, LOVE लव, ये लिख दिया मैंने, व्हाट यू लव। ठीक है, व्हाट यू लव। तो ये आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक अभी यहाँ पे कर लेना और एक बार आप मेडिटेशन के बाद करना, ताकि आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सो व्हाट यू लव में जस्ट क्लोज योर आइज, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए एंड गो बैक इनटू चाइल्डहुड डेज। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, और अपने स्कूल के दिनों में चले जाइए आप। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, योर कॉलेज डेज, एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू लव। आपको क्या करना अच्छा लगता है, और उस सर्कल में आप लिख दो बस आपको क्या करना अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, डांसिंग, मिमिक्री, प्लेइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सिंगिंग, राइटिंग, पोएट्री, खाना बनाना, बुक रीड करना। हाँ, आपको उसमें लिखना है, पेपर पे लिखना है दोस्त। अच्छा शरद जी, आप बाइक पे बैठे हुए, ओके। ट्रेवल करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपको मोटिवेट करना अच्छा लगता है। अच्छा, गाना गुनगुनाना आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग आपको अच्छी लगती है, पेपर से कुछ कुछ बनाना आपको अच्छा लगता है। वॉट यू लव, वॉट यू लव, आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है। आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आपको सब्जियां उगाना बहुत अच्छा लगता है, आपको खेतों में काम करना अच्छा लगता है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है। सो वॉट यू लव, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वॉट यू लव इट। फर्स्ट सर्कल है आपको कि क्या करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज सभी लोग भरिए उस सर्कल को। जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, सोचना नहीं है कि क्या है सही है गलत है, सिर्फ लिखते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, वॉट यू लव इट, आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट सर्कल। यदि आपने कर लिया तो टाइप डन इन चैट बॉक्स, यदि आपने ये कर लिया तो टाइप डन इन चैट बॉक्स। यस, टाइप डन इन चैट बॉक्स, टाइप डन इन चैट बॉक्स एवरीवन। ठीक है, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, मिमिक्री अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ सिलाई का काम अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, लोगों को ज्ञान देना अच्छा लगता है, मोटिवेट करना अच्छा लगता है। ठीक है, कपड़ों से कुछ कुछ बनाना अच्छा लगता है, प्लास्टिक से कुछ बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहला सर्कल था व्हाट यू लव इट। अब मैं आपसे दूसरा सर्कल भरने के लिए बोलूंगा। दिस इज द सेकेंड सर्कल। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, ये सेकेंड सर्कल है। तो सेकेंड सर्कल की हेडिंग क्या आएगी, व्हाट यू आर गुड एट। मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, व्हाट यू आर गुड एट। तो अभी जो आपने लिखा व्हाट यू लव, आपको क्या करना अच्छा लगता है,
सो उसी में से आप लिखो कि उसमें से कितने काम में आप अच्छे हैं। गुड मीन्स अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। बट एकदम 10 नंबर की आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे हैं आप। सेल्वराज, इफ यू आर एट होम राइट इन योर डायरी, या चैट बॉक्स में मत लिखो, बिकॉज यू विल लूज ऑल दिस डेटा। सो व्हाट यू आर गुड एट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि सर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं ट्रेनिंग या कोचिंग देने में अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज डेज में भी ट्रेनिंग कोचिंग दी है। सो आई एम गुड। आई एम गुड इन सेलिंग। आई एम गुड इन गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है और मैं गार्डनिंग में अच्छा भी हूँ। अच्छा, मुझे वॉइस ओवर मतलब सिंगिंग अच्छा लगता है और मैं सिंगिंग थोड़ी अच्छी कर भी लेता हूँ। राइट राइट। सो व्हाट यू लव एट पहला सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल व्हाट यू गुड एट। अभी इस दोनों सर्कल में कुछ चीजें कॉमन होगी। राइट, सो लेट मी शेयर विथ यू। ओके, सो नाउ सी, सो व्हाट यू लव, अभी आपने पहला सर्कल भरा, फिर आपने क्या लिखा, व्हाट यू आर गुड एट। सो ये जो दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज योर पैशन। दिस इज योर पैशन। दिस इज योर पैशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, राइट, और अमिताभ एक्टिंग में अच्छे हैं। सो पैशन क्या हुआ, एक्टिंग। विराट कोहली को खेलना अच्छा लगता है, बचपन से खेल रहा है और खेल में वो अच्छा भी है, तो पैशन क्या निकल के आया, क्रिकेट। बट बाकी जो कॉमन लोगों के साथ क्या चैलेंज रहता है कि बचपन से हमें पता नहीं रहता, या फिर हम स्टडी करने के बाद जॉब में जाते हैं क्योंकि हमें पैसे कमाना होता है, तो हमें क्या अच्छा लगता है और हम किस में अच्छे हैं ये दोनों चीज हम भूल जाते हैं। राइट, और जिसकी वजह से हमें पैशन का पता ही नहीं चलता। फिर वो मनी पैसा हो जाता है और 15 साल के करियर के बाद फिर आप मिड करियर वाले ट्रैप में आ जाते हो फिर। राइट, सो व्हाट यू गुड एट, आपको क्या करना अच्छा लगता है, और मतलब व्हाट यू लव इट, आपको क्या अच्छा लगता है और आप उसमें कितने अच्छे हो, इनसे निकल के आता है आपका पैशन। समझ रहे हैं सभी, क्लियर है ना? जस्ट गिव मी थम्स अप ये वाला यदि आपको समझ में आ गया तो। काम आपको अच्छा भी लगता है और आप उसमें अच्छे हो, वही आपका पैशन है। क्लियर है? अब आप बताओ कि धोनी बोले मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और धोनी क्रिकेट में अच्छा ना हो तो इंडिया टीम में आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था? अमिताभ बच्चन अभी भी 78 की एज तक नहीं चल पाते। अच्छा, उनका बेटा नहीं चल रहा है, मैं प्रैक्टिकल थिंग। सो बाप जो है वो एक्सपर्ट है, राइट, बट बेटा जो है वो एक्टिंग उसका पैशन नहीं है, तो बेटे का पैशन कुछ और हो सकता है। सो लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है, राइट, तो सचिन इज ए गॉड ऑफ क्रिकेट, बट उनका बेटा क्या है, उनका पैशन क्रिकेट नहीं है। उनने बहुत जोर लगाया कि नहीं बेटे को धक्का मारो हो जाएगा, बट उसका पैशन नहीं है। आप देखो। सो इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, नेहरू गांधी फैमिली सारे मुस्कुराने लगे। वो उनका पैशन नहीं है, पॉलिटिक्स उनका पैशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली लीडर वो बंदे को धक्का मारा जा रहा है, करो करो। बट हो सकता है उसका पैशन कुछ और हो, कुछ और हो पैशन, बट बिकॉज ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कारण वो पैशन उनका किधर गया वो पता ही नहीं चल रहा। राइट, उद्धव ठाकरे जी, उनका पैशन है फोटोग्राफी, उनका पैशन पॉलिटिक्स नहीं है। राइट, सो आप देखोगे कि कई लोग, उनका पैशन कुछ और होगा, वो कुछ और कर रहे हैं, वो फिर पूरे दिल से नहीं करते, पूरे दिल से वहां फिर एनर्जी भी नहीं जाती। स्पोर्ट्समैन देखो आप, पूरी लाइफ खेलते रहेंगे, चाहे रिटायर होने के बाद किसी और तरीके से खेलेंगे। एक्टर्स आप देखोगे बुढ़ापे में उनको दूसरा रोल मिल जाएगा। राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उस काम में कितने अच्छे हो। यदि ये जितनी कम एज में पता चल जाए, मतलब आप अपने पैशन को पकड़ लेते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है, तो हम पैशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। और मैंने तो अपने 35 के आसपास, 35 की एज में मुझे अपना पैशन पता चला। ठीक है, तो जो मैं अभी आपसे करवा रहा हूँ ये मैंने खुद ने भरा हुआ है, किसी दिन मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने सर्कल किया, सर्कल को भरा और वहां से निकल के आया।
तो अभी जो मैंने आपको बताया, आपको आपका पैशन अभी बहुत रॉ फॉर्म में पता चला होगा, बहुत रॉ फॉर्म में। ऐसे नहीं कि सर एक ही सेशन में हमें पता चल गया, नहीं, थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि ये काम मुझे अच्छा लगता है और इसमें मैं अच्छा हूं। यदि इसको आप और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको हमेशा मेडिटेशन के बाद करना चाहिए, मेडिटेशन के बाद करना चाहिए। उसमें एक्चुअली 1-2 घंटा पूरा, इसी इसी सर्कल की एक्टिविटी में मैं आपको 1-1.5 घंटा निकाल देता आपका, राइट। तो अभी क्या हुआ, अभी आपको आपके पैशन के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी मिल गई। नाउ जब आप अपने पैशन को लेके मार्केट में जाते हो और लोग उसके लिए पे करने को रेडी हैं, अच्छा आप में से कोई एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे, जो ये बोले कि सर मुझे मेरा पैशन समझ में आ गया है। कोई भी हो, पुलक आप नहीं, एनीवन, एनीवन विल डिस्कस विथ योर एग्जांपल। आप में से कोई भी हो, मोहन, प्रफुल्ल, शिव, साहू, योगेश, अरे कोई तो बताओ, एनीवन, एनीवन, यस क्विकली। क्या हुआ, ज्यादा समझ नहीं आया है, ज्यादा समझ में आ गया, दो ही एक चीज माय होती। ओके शैलेश, ओके। तो शैलेश, आपका क्या समझ में आया, पैशन क्या निकल के आया, रफ पैशन। म्यूट पे आओ, यू आर ऑन म्यूट। गार्डनिंग है और एक टीम बिल्डिंग। गार्डनिंग है, ठीक है। यस। अच्छा, तो अभी गार्डनिंग आपको समझ में आया कि ये आपका आपको ये काम करना अच्छा लगता है, पहला सर्कल, यस। और आप इसमें अच्छे हो, ठीक है, यस। और ये आपका पैशन है। तो यस। अभी जो आपका ये पैशन है, अब मेरा क्वेश्चन है कि यदि आप गार्डनिंग की कुछ सर्विसेज लेके मार्केट में जाते हो, तो क्या लोग आपको 50-100 रुपए दे सकते हैं? बहुत नॉर्मल पूछ रहा हूँ, 50-100 रुपए दे सकते हैं, 50 रुपीज, यस। 100 रुपीज दे सकते हैं, ठीक है। नाउ आपने क्या किया कि अपने गार्डनिंग के नॉलेज को और बढ़ाया, ठीक है, और आपने बोला कि भाई आप छत पे ही 5 गमले से सब्जी उगा सकते हो, अच्छी अच्छी वैरायटीज की, ठीक है। अब आप, अब लोग आपको 200 से 500 रुपए दे सकते हैं क्या, जब आप लोगों को ये ज्ञान दोगे, पूरी जानकारी दोगे, देंगे तो देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अपने नॉलेज को और बढ़ाया और आपने बोला कि मैं आपको छत के ऊपर एक पूरा सेटअप बना के दूंगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के दूंगा, और उसमें आप बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हो, ठीक है। अब आप यदि लोगों से 1,000 रुपए चार्ज करोगे तो लोग आपको 1,000 रुपए देंगे क्या? दे सकते हैं ना। तो पहला केस था कि आपको आपका पैशन पता चल गया। दूसरा केस था, आप अपने पैशन को लेके मार्केट में गए और आपने लोगों की मदद करना चालू की, और शुरू में आपने 5 लोगों को फ्री में सर्विस दी, 5 लोगों को, मुझे, पुलक को, अमिरल को, बबली को और देवी को, ठीक है, 5 लोगों को फ्री में सर्विस दी। और भाई हमें तो फायदा हो गया क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी उग गई। और आपने बोला सर एक छोटा सा वीडियो बना के दे दो मेरी सर्विस के बारे में, और हमने वीडियो बना के दिया, और आपने इस वीडियो को वायरल किया, सोशल मीडिया पे डाला, वहां से और 5-7 लोग निकल के आए, फिर आपने उनको एक्चुअल चार्ज किया, हमको फ्री में दिया और उनको उनको 500-500 रुपए में दिया। तो जब आपको लोग आपकी सर्विस के लिए पैसे देने लग जाएं, तो वो आपका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, इंटरेस्टिंग चीज, ये पैशन है, गार्डनिंग इनका पैशन है, राइट, गार्डनिंग इनका पैशन है। ये पैशन को लेके मार्केट में गए, लोगों के बीच में गए और सर्विस देना चालू किया, लोगों ने इनको पे करना चालू कर दिया, तो इट बिकम हिज प्रोफेशन, ठीक है, इट बिकम हिज प्रोफेशन, राइट। ये देखो, ये सर्कल समझो, व्हाट यू आर गुड एट, गार्डनिंग में आप अच्छे हो, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, गार्डनिंग के लिए आप लोग आपको पे करने वाले हैं, तो आपका ये प्रोफेशन बन गया, ये दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन आपका प्रोफेशन बन गया, ठीक है। अभी आपने क्या किया, अब आपने देखा यार कि 500 रुपए में तो मजा नहीं आ रहा, कुछ हटके करते हैं, है ना, कुछ ऐसी सब्जी उगाने का तरीका बताते हैं छत के ऊपर जो बहुत महंगी है और क्वालिटी रिच है, मतलब जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ है, ठीक है। और आप कुछ जैसे वो ड्रैगन फ्रूट्स उगाने वाला कुछ फंडा लेके आ गए, राइट। तो आपने क्या किया, अपने स्पेशलाइजेशन को और फाइन ट्यून किया। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन क्या था कि आप एमबीबीएस बन गए, तो आप 300 से 500 रुपए चार्ज करो, आपने बोला नहीं यार मुझे ज्यादा पैसा चार्ज करना है, और आप हार्ट सर्जन बन गए, तो हार्ट सर्जन आप सभी को पता है कि बहुत चार्ज करता है। तो वैसे ही गार्डनिंग में
आपने या तो फ्रूट्स वाली कोई वैरायटी पकड़ ली या बहुत स्पेशल वेजिटेबल्स वाली वैरायटी पकड़ ली, जहां पर लोग आपको 2,000 से 2,500 या 3,000 देने को रेडी हैं। इसका मतलब गार्डनिंग के बाद आप और नैरो चले गए। मतलब यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री तो हो गई, अब आपने क्या कर ली, पीएचडी कर ली। समझ रहे हो? तो जब आप अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, नेक्स्ट लेवल पे, दैट बिकम्स योर वोकेशन। मतलब उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो जैसे एमबीबीएस प्रोफेशन हो गया, हार्ट सर्जन क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। योगा एक प्रोफेशन हो गया, बट उसने बोला कि मैं सिर्फ विमेंस को ही सिखाऊंगा, और वो भी प्रेग्नेंट विमेंस को। बहुत स्पेशलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के कारण आप ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, राइट? तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो आपका प्रोफेशन जो है वो वोकेशन में तब्दील हो जाता है। अब हर किसी को सर्विस नहीं दे रहे हो, आप एक पर्टिकुलर क्लास को सर्विस दे रहे हो, जहां पर आप अच्छा अमाउंट चार्ज करते हो, राइट? सो सुपर 30 वाले जो आनंद साहब हैं, 30 लोगों को तो फ्री में देते हैं, राइट? उसके बाद आप पता करोगे तो बहुत बैच है उनके पास जहाँ पे डेफिनेटली वो अच्छा अमाउंट चार्ज करते होंगे। तो आप ये सोचो कि प्रोफेशन को जब आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, स्पेशलाइजेशन पे, वहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलता है, जिसे कि वोकेशन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखोगे, ये तीनों चीजें काम कर रही है इस सर्कल में। आपने यहाँ से इजाद किया कि आपको क्या करना पसंद है, आप उस काम में कितने अच्छे हैं, तो आपका पैशन का जन्म हुआ। आपके पैशन से आपके प्रोफेशन का जन्म हुआ, और आपके प्रोफेशन से आपके वोकेशन का जन्म हुआ। ठीक है। अब बात आती है लास्ट सर्कल की, व्हाट दी वर्ल्ड नीड। अच्छा ये बताओ शैलेश, क्या लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गार्डनिंग के बारे में बताए? डेफिनेटली चाहिए, राइट? सो व्हाट दी वर्ल्ड नीड, लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गार्डनिंग के बारे में बताए, लोगों को हार्ट सर्जन चाहिए। तो जब दुनिया को ये चीज चाहिए और यही काम आपका फेवरेट काम है, तो ये आपका मिशन बन जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो यदि आपको अभी तक का नॉलेज वाव लगा, तो WOW वाव लिखिए। ये जो मैंने अभी आपको बताया, व्हाट यू लव इट, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड। 4 चीजें, ठीक है? व्हाट द वर्ल्ड नीड, राइट? सो जो हमने इसके पहले 21 आइडियाज डिस्कस किए थे, वो सारे 21 आइडियाज में क्या क्या कमी क्या थी, कि वो आपका पैशन नहीं था। यस और नो? वो एक आइडियाज थे, वो इंफॉर्मेशन थी, बट वो आपका पैशन नहीं था। अच्छा, जब आपका पैशन नहीं था तो वहां पे आपकी एनर्जी भी नहीं जाती, राइट? आपकी एनर्जी नहीं जाती, वो चीजें काम करती नहीं करती, आप आधे अधूरे मन से काम करते। फिर आप बोलते कि नहीं यार, इससे अच्छी तो मेरी नौकरी थी। तो करना क्या है, कि आपको ये सर्कल के ऊपर दोबारा काम करना है। वॉट यू लव इट, वॉट यू आर गुड एट, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, एंड वॉट दी वर्ल्ड नीड। तो ये चारों सर्कल से जो कॉमन चीज मिलेगी, वो आपका इकिगाई होगी, पर्पस ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। इकी मीन्स लाइफ, गाय मीन्स पर्पस, सो इकिगाई इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। ये जैपनीज टर्म है, ठीक है? इसको अलग अलग ट्रेनर्स जो है अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट इसको आप जितने बार ट्राई करोगे, आपको कॉमन चीज ही मिलेगी। क्योंकि मैंने जितने भी क्लाइंट्स को पेड प्रोग्राम में ये सिखाया है, तो वो क्लोज ही निकल के आता है। और हमेशा मैं मेडिटेशन की बात करवाता हूँ, ताकि आपका दिमाग बहुत शांत रहे। और एक बार करो, 2 बार करो, और जो आपको पैशन पता चलेगा, आप अपने जॉब के साथ उस पैशन को पॉलिश करो। तो जैसे मोची क्या करता है, शूज को पॉलिश करता है, पॉलिश करता है, पॉलिश करता है, पॉलिश करता है, फिर शूज शाइन करता है, राइट? वो क्या करता है, प्रेस वाला आपके कपड़ों को प्रेस करता है, तब आपका कपड़ा शाइन करता है। तो वैसे ही जब आप अपने पैशन को प्रेस करते हो, रगड़ा मारते हो, रगड़ा मारते हो, रगड़ा मारते हो, सीखते हो, उसको और पॉलिश करते हो, तो आपके पैशन से फिर आपके प्रोफेशन का जन्म होता है। तो जो लोग जॉब में हैं, वो जॉब के साथ यदि 2-2 घंटे, 2-2 घंटे अपने पैशन को देंगे, तो उनका वो पैशन जो है धीरे धीरे एक प्रोफेशन का रूप ले लेता है, जहां से कि आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, और एक टाइम के बाद आप अपने जॉब से क्विट करके आप अपने प्रोफेशन को ही मेन बिजनेस बना लेते हैं। तो इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है? और लास्ट जो मनी मेकिंग आइडियाज था, वो था आपका इंश्योरेंस का। आप में से यहाँ पे 2-3 लोग पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं भी। तो इस तरीके से आप अपने पैशन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पैशन से पैसा बना सकते हैं, राइट? आप अपने पैशन के थ्रू जो है
पैसा बना सकते हैं, बट आपको डेली क्या है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है जो शायद आप में से किसी ने पूछा नहीं, कि सर यदि मुझे मेरा पैशन नहीं मिला तो मैं क्या करूं? पॉसिबल है, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर यदि मेरे को पैशन नहीं मिला तो मैं क्या करूं? हो सकता है ऐसा कि आपको आपका पैशन ना मिले। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना, यस और नो? आपको पॉसिबल, पैशन ना मिले, पॉसिबल। पॉसिबल है कि आपको पैशन ना मिले। सो इन केस आपको यदि पैशन नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे? वेरी सिंपल, प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व की, 5 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, देन यू आस्क, क्या और भी लोगों की ये प्रॉब्लम है? यस। कैन आई मेक सम सिस्टम? यस। कैन आई हेल्प देम? यस। वो आपका बिजनेस हो गया। संजय सिंह की आप होना। तो जो ओला, ओला का जन्म कैसे हुआ, यदि आप ओला के बारे में पढ़ोगे, सो जो अग्रवाल साहब हैं ओला के मालिक, वो जा रहे थे उस समय, टैक्सी उन्होंने हायर किया, और टैक्सी वाले ने रास्ते में रेट ज़्यादा बोल दिया या बोला इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, और उनको रास्ते में, सुनसान रास्ते में उतार दिया। वो बंदे को वहां से पैदल आना पड़ा। देन ही थॉट कि यार ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत लोगों के साथ किया होगा। तो फिर उन्होंने कुछ टूर्स ट्रेवल समथिंग ही स्टार्टेड। तो कभी भी जो आपका पैशन होगा ना, तो आप रफ फॉर्म में चालू करोगे और वहां से आगे चलते 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 आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप यदि ये बोलो कि नहीं नहीं सर मेरे को तो एक ही बार में बता दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वहां से उन्होंने टूर्स एंड ट्रेवल्स का कुछ काम स्टार्ट किया, और धीरे 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 फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐप बेस्ड कर देते हैं सिस्टम पूरा। फिर उन्होंने पूरा ओला को ऐप बेस्ड कर दिया, और आप सभी को पता है कि शुरू में आपको 200 रुपीज मिलता था किसी को रिफर करने का। धीरे 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 आपकी आदत में आ गया, आप हैबिचुअल हो गए ये टैक्सियों के। फिर उन्होंने देखा यार ओला तो मेरा चल पड़ा, नेक्स्ट लेवल क्या है, वो ईवी में आ गए, ईवी टू व्हीलर में आ गए। नाउ ही इज मूविंग टू ईवी फोर व्हीलर ऑल्सो। तो यदि आपको पैशन पता नहीं चल रहा है, तो आप अपने आसपास की जो भी प्रॉब्लम है या आपकी जो खुद की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और पूछो कि क्या 5 लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, यस। तो इस तरीके से भी आप देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसमैन प्रॉब्लम के साथ में स्टार्ट होते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे फिर वो एक बिजनेस का रूप ले लेता है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको गूगल पे इसकी इमेज मिल जाएगी, बट आई फील कि बहुत कम लोग ये सर्कल को भरते हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल है सर्कल को फिल करना। नेक्स्ट आइडिया था 22 मनी मेकिंग आइडियाज था, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आप बन सकते हो उसके लिए भी। एंड दिस इज माय डिटेल, है ना? आप मुझे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। दिस इज माय बुक, हिंदी इंग्लिश में। इस बार कोड को आप स्कैन करोगे तो आप यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। सो नाउ अनम्यूट करके बताइए कि आपको ये सेशन